नमस्कार दोस्तों, welcome to the 52nd episode of Musical Musings. Uh, as all of you know that it has been a wonderful journey for me, that I have been able to interact with many great musicians, musicologists, and even organizers who are related to music, and all have blessed me with their graceful presence and enriching knowledge. So, to take it forward, today I have been joined by one of the foremost and senior most exponent and musician of Hindustani classical music, and a harmonium exponent par excellence, Dr. Sudhanshu Kulkarni ji. His presence today is a blessing for us because many of might you not know, or many of you might know also, the contribution he has done to the harmonium is unparalleled. It's very few people in this Hindustani classical music who can claim to have done so much of work about harmonium. So, without much of me talking, I would like to invite Dr. Sudhanshu Kulkarni ji to know more about his music, his journey as an artist, and his exploits with the harmonium. So, all these things will be taken in detail today. It will be a very, very educative session for all music students. Namaste, Pandit ji. Namaskar, namaste, namaste. Welcome to Musical Musings. Thank you, sir. Thank you. And thank you very much for taking out time and joining all of us today. It is my pleasure to join you, Dhananjay ji. I Arre, have seen you since your childhood. I am playing with you, yes, and yes, your Guruji. So I know how yes, much pain and your Saptak is taking to yeah, encourage and enhance music and spread yeah, music and giving yeah. chance to all budding also and senior artists. You are doing a great job. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to begin by asking you, Yeah. how were you initiated into music? How, whether the music was there in family, or how did you take up music? Uh, in my childhood, I stay in Belgaum because that is my native place. Belgaum has a lot of musical history. You Yes, must have heard Sri Ramkrishna Bua was a, Shivram Bua was a, Kagalkar Bua, and so many big artists, stalwart artists, they were staying in Belgaum in that period. So Belgaum, everything was musical, I think so. Okay, and there are two great institutions called Art Circle and Kalakar Sangh. So they yes, used to organize competitions and many music festivals and music programs. And in that Kalakar Sangh, I may say, that is the only Sangh which was created for the by the Kalakar and for the Kalakar. wow, wow. A member should be only a Kalakar only. Let be a player, accompanist, or a player or singer, but he should be a Kalakar. Kalakar. That was the condition that time. Oh, And in my home, my mother used to sing classical music. She oh, was wow. she was disciple of Pandit R.N. Bua Joshi, Joshua Yes, Pachapurkar. And Pachapurkar. Yes. and my father was also fond of harmonium very much. Mhm. He, Oh. he used to play little bit. By Mhm. basically, he was a teacher, English and Marathi teacher in school, high school. But he gave me lot of encouragement. So in Oh, this way, music started to. I took my music as my career. I started learning music. And one more yeah. thing, my grandmother is from Kundgol, and Oh, my great grandfather used to sing.
you can say that Bara Balutedar, so that he has got, he was staying in Nargod. So Oh, he has got a right, or he has got a permission to sing before that devotee every day in Shivale temple. So I may say that that music has come from that my mother's side. Okay, mother side. Ji. yeah. So first I learned tabla for about 10 years. Oh, First I started tabla. My first prize is in tabla in art circle when I was in fifth standard. Okay. oh, okay, okay. After that, I came under the tutelage of Appa Saheb Lakshman Sakharkar for Ji. harmonium. Hmm. He initiated me to learn along with tabla also to harmonium also. And I learned about harmonium from him about 8 to 10 years. After Hmm. that, I came under the tutelage of Pandit Rambhai Vijayapure, the Ji. great harmonium that we call it Mercy. And in his guidance, I have learned 40 years from him. Oh, 40. हाँ, people say that हारमोनियम में सीखने का क्या रहता है, थोड़ा स्वर ज्ञान आया है, थोड़ा बजा लेता है, कोई सिनेमा का गाना आता है तो सीखने की जरूरत है. ji. But that is not the case. For any art, you should have one guru, a good Yes. guru, and you should total surrender to his guru. That's why. But So I would like to ask here one thing, one question. Sorry yeah, to interrupt. Ki, yeah, how did you change? I mean, what made you prompted you to change from, because tabla you had learned for 10 years yeah, yeah, and yeah, you had won some competitions also in tabla. yeah, yeah. What made you to change to harmonium? My father was fond of harmonium much, so he used to Okay. play some Natti guitar, some light music like that, and he Uh-huh. initiated me. Please learn harmonium also. Okay. So that way I started taking harmonium. Okay. Okay. And during my journey, my Guruji gave me a lot of scope. So whenever any small program was there, he asked me to accompany. So encouragement, he gave me encouragement like anything, you can say. Oh, wow. Because of my Guru, it became my passion. Um, And Yeah. and you know Dharwad, Hubli, Kundgold, they are comparatively about 3-4 hours journey from Belgaum. Yes. Yes. So you have also done seva there in Kundgold, Sai Gandharva. Yes. So I am going there since about last 25 years. I am going to there as seva, and that I may say that Kundgold place and Dharwad and Hubli, that area has groomed me, I can say, because they gave me so many programs and all that. I will tell you one incident. When Yeah. my Guruji was about 60 years old, after 60 years. So Hmm. every year he used to go to Dharwad for Mallikarjun Mansur's program, that Aladia Khan Purnideti, Yeah. Yes. Bharatiya Sangeet Vidyalaya, Rahmat Khan Purnideti, Rehmat everything. Khan. Yes. Yeah, yeah. So, and I used to accompany him because just to take harmonium, whatever he needs, to take the tickets, reservation, everything. I was just like a shadow with him. Yeah. So once after 60 years, my Guruji told, you must be known my dear friend Mr. Anand Thariyar. Ji. Yeah, he is the main organizer Yes. and in Bharatiya Sangeet Vidyalaya, and Raghavendra Ai. Yes. They used to come to my master for invitation for that program of Bharatiya Sangeet Vidyalaya. So now master, my Guruji told that now I now become old. So this is my student and he just like son to me. He plays good harmonium. You please give chance. He will come. Henceforth, he will be my representative. So this Oh, way my journey started. wow. So Wow. this encouragement gave me a lot to take music as my passion. And along with Wow. my this music practice and learning, my college education was also going. So as I mentioned, Kundgold, no, Sai Gandharva, when I was accompanying somebody, Gangubaiji was also there. She used to come there always all time. So she asked once when I was accompanying to Joshi boy, just now I mentioned that who is this Hmm. boy? He plays Hmm. good harmonium. So if I invite him, whether his parents will allow him to come, I want to take him to Delhi for Oh, that Pragati Maidan, that festival was there. No, Pragati Maidan ah, in that Pradarshan yeah. exhibition, some music programs were Exhibition. Yes. conducted. Yes. Yes. So that time, so Joshibo told that I will tell his father and he will give permission. So Hmm. that was, I may say, my first official program or with such this great lady. So Oh, that gave me inspiration that हम भी कुछ बजाने वाले हैं, हम भी कुछ होने वाले हैं. ऐसा that inspiration मिलता है ना. yes. इन ये बड़े लोगों के साथ अब जब तुम कॉलेज में सड़ा एक स्टूडेंट को मिलते हैं, अरे तुम मेरे साथ अकम्पनीमेंट के लिए आओ, तो एक बड़ा Ji. बहुत, Ji. हाँ वो Oh, बड़ा एक definitely.
हाँ, एक ब्लेसिंग जैसा होता है. Yes, So yes. she liked that my accompaniment, and also so many nearby playlists used to take me. So that gave me that अरे हम भी कुछ हारमोनियम बना सकते हैं, बजा सकते हैं. So why जी. I should not take this as a profession. Oh, So in this way it became my profession. okay. It- Okay. Since my childhood when I was learning, only I was my parents told me that learn as a hobby. So Yes. automatically it becomes my profession. And after my graduation, I had become my Sangeet teacher also. Yes. So that coincidentally, one advertisement from Goa Kala Academy had come, Hmm. harmonium teacher wanted. So I simply applied for that. And I will tell you that there were so many senior teachers who has got Hmm. experience about 40 years, 30 years from Bombay, Pune, and all that from local also. But Hmm. in my interview, I played Todi, still I remember. And my interview takers were, examiners were Pandit V.R. Athole, Oh, Josna Bole, and Malbara Sir Desai. One was this stalwart from Goa. जी. So they liked my performance and they asked me, "You are so young, you are doing law, and would you like to become a teacher? Because you can have got so many opportunity in every academic career." I said, "I love my music, I will teach." So they gave me appointment. So I did their harmonium work for about 6 7 months. Then I was a little bit homesick, so therefore I left the job and came here Okay. and start doing further study. I did my Alanka and all that. So, but even after that, I have chosen music as my profession. So after that, when I came to Belgaum, I started my own class called Academy of Music. Okay, and I used to conduct my so many classes and all that. And during that time, I got opportunity to do, I mean, a teacher job in a blind school called Maheshwari School for the Blind. So I may say that I worked there 12 years, and I may say that that is my golden pair of learning and teaching. So we can see for busy people we can teach, but for a Yes. person जिनको आंख नहीं उनको सिखाने का जरूर एक जरूर सीधा अलग से सोचना पड़ता है. It's a So challenge. instead, yeah, it is challenge. So I used to get ideas that how to teach to that because they can't see how to put fingers on harmonium, on little bit tabla also. But I may say that I served there 12 years, but that was my golden period and my most enjoyable period in my life, I must say. Because I will say that those students taught me how to teach. Wow. Wow. Huh? And they are so lovable students. So I was so fascinated with that teacher. They used to wait for me that when Sangeet, they used to see that was Kannada school. Sangeet sir Uh, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ Sangeet sir ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ means how when music teacher is coming. So I had got so many affiliation for that. So now I'm not doing that work, but so many of the students they are doing teacher government job as teachers, and still I have got so many contacts with him. They even good. come to ask if they have got any difficulty. Sir, I rag nang here. Sir, I want to some basic bandish of this rag and all that. How Right. this rag is, what is the aro or chalan of this rag. So I'm very happy in that sense that I got some good students and then I have served for the blind school. Wow. Wow. And after that, Belgaum, Dharwad, Kolhapur, they are near to, So in that area, that time there were my Guruji and Vasant Kankapurji. They were those only two stalwart harmonium players in this area. So I Yes. get a lot of opportunity to provide harmonium accompaniment so many big artists, even for budding artists. And that gave me a lot of boost. You can say from that I learned a lot. सो जब आप अकम्पनीमेंट करते हैं किसके भी जो छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो बड़ा आर्टिस्ट हो Artist. हाँ इफ यू आर गॉट ओपन माइंड आप उनके साथ सीखते हैं. जी. एक छोटा बच्चे को उसके गले में कोई ऐसी हरकत जाती है अरे क्या बात है उसके हारमोनियम को निकालना बड़ा मुश्किल भी होता है. तो अरे वो उसने ऐसा गया तो क्या उसने क्या किया. तो आई हैव टू लर्न आई हैव टू थिंक ओवर. सो माय प्रोसेस ऑफ थिंकिंग गोइंग ऑन. तो Yes. मुझे हाँ उनसे थोड़ा मुझे एक इंस्पिरेशन मिला. एक मुझे अलग जात मिली. एक अलग टाइप का पैटर्न मुझे मिला. Yes. ऐसा में डेवलपमेंट हो गया. और मेरे गुरुजी का सानिध्य में मेरे को इतना बजा कि वो इतने डाउन टू अर्थ थे जी. कि उनको ये जी. अहंकार ईगो वगैरह उनको उसका लवलेश ही नहीं था. तो उस एटमॉस्फेयर में पला हूँ. इसलिए मुझे भी मैं लगता हूँ कि मुझे कोई ईगो नहीं है. कोई छोटा बच्चा से सर ये आपका जरा ऐसा अच्छा नहीं आप जरा कम से बजाओ. ठीक है हम बजाएंगे. बिकॉज व्हेन आई एम ए अकम्पनीमेंट आई हैव टू प्ले दैट माय रोल. आई एम ए सपोर्टिंग रोल. Correct. Correct. इस Correct. इस तरह मेरा जर्नी चल रहा है. और मैं बोलता हूँ कि
सिखाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह हाँ, वाह। तो कई ऐसा होता है कि आप गाने में जैसा बोलते हैं कि इसका गाने का गला का स्टाइल ऐसा है, हम नॉर्मली वी कॉल इट जात, इसकी गले की जात ऐसी है वैसी है, यस वैसा फिंगरिंग में भी वैसा है, हारमोनियम में और कोई भी। तो कई के हारमोनियम में जो बजाते समय उसके क्लैरिटी ऑफ ताना नेचुरल रहती है, यस सॉफ्ट तान जरूर रहती है, कोई गमक जैसा तान रहता है, कोई आलापी का फिंगर रहता है, तो उसके मुताबिक हमको सिखाना पड़ता है। जी सिखाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट कंपेयर ऑल द स्टूडेंट्स एट वन लेवल। यस हाँ, तो ये संगीत हमारा तो सब्जेक्टिव है, तो 1 to 1 पैटर्न से ही सिखाना पड़ता है। स्कूल में 10 बच्चे को कोई सिखाया है, वो जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए देता है। यस Where, as in academic school, how you take 20 students for one class in mathematics, so 20 students for music, you cannot differentiate. यस You have, हाँ, उसको अलग अलग तरह से सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसका सोच करेक्ट अलग रहती है, उसके गले करेक्ट की जात अलग रहती है, उसका आवाज की करेक्ट मिठास अलग रहती है। उस हिसाब से गुरु को सिखाना पड़ता है। हाँ, I, एंड ईच स्टूडेंट का प्लस एंड माइनस अलग अलग होता है। अलग होते हैं, तो उसको खुश ही रखना चाहिए ना। क्यों, म्यूजिक एक पैशन करके सीखते हैं, जीवन के लिए कंपल्सरी कुछ नहीं है। उनके पेरेंट्स जी लगते हैं कि अरे ये हमारा बाजू का बेटा कोई क्लासिकल गाता है, उसको प्राइज मिले, तो मेरे बेटे को क्यों नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि इसको भी कुछ सिखाओ। अभी तो आज रियलिटी शो का जमाना चल रहा है, जी जी तब पेरेंट्स जी को लगता है कि उनके बेटे एक अच्छा गाता है, तो मेरा बेटा क्यों नहीं अच्छा गाता और बजाता। वो तो हमारे पास आते हैं और सर डबल फी ले, लेकिन 2 महीने में हम उसको एक एक तो एपिसोड में वो तो आना चाहिए। उनको म्यूजिक ऐसे इतना आसान लगता है, लेकिन वो ऐसा आसान नहीं है। ये जी कितने भी लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्ट रहता है, आप जितना सीखो जितना विचार करो, आपको लगता है कि अरे हमने कितना कम किया है। इसमें मैं एक मेरा एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आप हम्म, जैसे बताए कि रामभाऊ पंडित रामभाऊ बीजापुरी जी जो थे, वो हम्म, एक गुरु के नाते आपको कितने सपोर्ट किए, मतलब आपको वो ये करते थे कि आप बजाइए, ये मेरा स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छा बजाता है करके आर्ट ऑर्गेनाइजर को बोलते थे। ये या मैंने पुराने जमाने के आर्टिस्ट में सब में देखा है मैंने ये। या सब लोग इतने, मतलब हमारा शिष्य है, मेरा शिष्य अच्छा बजाता है, या दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट या बहुत या ही, मतलब इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द या या स्टूडेंट। या और उनको एक अभिमान रहता है ना, अरे मेरा अच्छा, मैंने इतना सिखाया, ये कुछ कर रहा है, इसको थोड़ा आगे से जाना चाहिए, उसको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। इसके लिए गुरु का दिल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत सही है। हाँ, और दोनों अच्छा गुरु मिलना और अच्छा शिष्य मिलना, ये भी एक कोइंसिडेंस रहती है, ऐसा यस मैं यस लगता यस हूँ। यस 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 या यस यस, या जरूरी है जरूरी है। या मैं इधर से मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूँ, उससे पहले मैं कुछ लोग हैं जो ज्वाइन हुए हैं, कलाकार लोग भी हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। अर्चना कानेरी जी ओके मुंबई से ज्वाइन हुए हैं, तो वो भी आपको नमस्कार कह रही है। और माय फादर जीएस हेगड़े जी, ही इज या या आल्सो या कन्वेइंग हिज। और एक नील जैन करके हमारे इंदौर से है, ही इज अच्छा फ्रॉम ओके इंदौर, या ही इज इनटू स्पीक मेके। या तो वो है एक श्रेयस रविंद्र करके, अमेरिका से देख रहे हैं, शिकागो से, वो आपका ओके प्रोग्राम अभी तो ओके देख रहे हैं, वो भी आपको प्रणाम बोले हैं। अ, रवि किरण नाकोड़ वो भी आए हैं हमारे साथ, सुन या रहे हैं वो भी। जी जी। uh, पंडित जी, आई वुड लाइक टू आस्क little basic question. It may be basic for many people, but people who या want to know about the instrument itself, या तो उसके बारे में, तो उससे पहले your guru bandhu Dr. Ravindra Katoti is also joining. He is also या saying या hello ji. या So नमस्ते भाई। yeah, yeah. Can you please tell a little bit about the instrument itself, या या how that instrument, uh, how it came to India, or when it came to India, what is या harmonium, how it was या derived? या Yeah. Harmonium was invented by one Mr. Alexander Dubé from Paris in 1840. Okay, Oh, and, okay. yeah, and he took the patent, and it became very popular for that church music and all that. Okay, Oh. you can say miniature of organ, I can say, but Hmm. it to pump on pedal pipe. So हम pipe एटी बोलते हैं इसको. Ji, So when yes, yes. it came to India in 1880, okay, Okay. and it was first used in 1882 for a drama called Sangeet Saubhadra.
Oh. And because of the, you can say, versatility, it became very popular for kirtan, tamasha, ghazal, film music. For any, you talk any type of music, harmonium is a must because it is most essential. So it became very popular. And in every home, you can say हारमोनियम, से हम देख सकते हैं कि हर घर में एक हारमोनियम होनी चाहिए उस पे। वो उस टाइम जब लड़की का शादी होता था या उसमें जो देखने आते थे उसको बोलते गाना आता है क्या, हारमोनियम बजाना आता है। सो दैट वाज वन ऑफ द टेस्ट। इफ यूज्ड टू सिंग, दैट गर्ल यूज्ड टू सिंग गुड सिंगिंग और प्ले हारमोनियम टू गेट अप्रूवल फॉर मैरिज। Yeah, yeah. True, true. So that's how it came to. So when it came, actually, it was a the जो pipe लेग बोलते हैं, leg harmonium था. या Then how did it get converted into the harmonium which we normally see nowadays? या सी when it became that the harmonium wala used to have to sit on a table or on a kursi chair for playing, and the singer used to sing it down, जैसा बैठक में बोलते हैं ना ऐसे. Correct, correct. It used to look very odd. So some people that time, Mr. T. Ramchandran was having one wholesale agency from Bombay of that Paris. So there are two versions. So he requested the Paris people that this is inconvenient for me. You please see that it can be made hand pump. So they invented and make it hand pump. And then the another version is that in Calcutta, one Mr. Dwarkinson and company was there. So he invented that hand bellow. So there are two versions. तो पहला उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और he invented a hand pump like just now what you are using. That are two versions. Okay. And what are the reeds? We normally hear that it is a German reed. So what kind of reeds, the types of harmonium, the types of reeds, थोड़ा उसके बारे में भी अगर बताएंगे. हारमोनियम में 3 टाइप के रीड्स यूज करते हैं नॉर्मली, जिसको हम बास बोलते हैं. बास यानी खर्ज, मेल यानी नर, करेक्ट, और फीमेल यानी मादी बोलते हैं. तो जो पहला था उसका इस्तेमाल नाटक कंपनी के लिए होता था उसको, और उस अभी जैसा माइक सिस्टम वगैरह एडवांस टेक्निकल एडवांस ऑडियो सिस्टम आया उस टाइम वैसे नहीं था, इसलिए आवाज ज्यादा लास्ट पर्सन तक पहुंचना चाहिए था, इसलिए इसका आवाज बड़ा चाहिए था, इसलिए हारमोनियम का इस्तेमाल बहुत हुआ. और इसमें खर्ज, नर और मादी तीनों थे, इसलिए इसका आवाज बहुत बड़ा आता था. और थोड़ा छोटा म्यूजिकल इफेक्ट लेने के लिए आप कौन सी भी लाइन बंद करते सकते थे. खर्ज सो यू कैन गेट 3 पेट्स. ओके, अभी मैं आपको खर्ज हारमोनियम कैसा ऐसा मैं थोड़ा डेमो देता हूँ. ओके, there are also 2 types of harmonium, one flat harmonium and a vertical harmonium. Flat and now Sarang will show you how it works and what is kharj and what is net. Yes. Hello, Sarang. Yes. For the flat harmonium, the reeds are at this board directly horizontally. Okay. Whereas there is one more called vertical harmonium. This step. The reeds are fitted in vertical. Okay. This is male harmonium. This male nar harmonium. This is not widely used for providing accompaniment to ladies and for providing rendering solo harmonium. Okay. So what about reeds? Normally we tell that we hear that German reeds and all. Which are types of reeds normally we see? No, just now I told you, kharj means bass, male means nar, and madi means female. Okay, these are 3 terms. Okay. Normally, in former period, the harmonium used to come in 3 lines. That's kharj, nar, madi. Okay. Okay. That was used for kirtan, ghazal, tamasha, light music. Afterwards, when it widely used for accompaniment, people use kharj and nar, madi, that bass male harmonium. Okay, for providing harmonium accompaniment. And for ladies, as I told you, it was male harmonium, which I am having just now. Yes. This can be used for accompaniment also of ladies and for rendering solo also. Okay. So kharj, nar, madi, bass, male, female. These are 3 types of reeds. Okay.
And Okay. formally, when it came to India, the Paris reeds and German reeds were very good in tonal quality. Okay. So in the Second World War, because of Second World War, this import of musical instruments was stopped. Okay. So, so in 1920, one Mr. Jivandal from Bhavnagar, Hmm. he he started manufacturing of harmonium reeds, and Oh. in Bhavnagar, Palitana, Kukkad, there are so many various places nearby in Hmm. Gujarat. Hmm. So there, all this mystery community, you can say, Chari or mystery community, Okay. they got the actual idea and some invention they made, and they started a good quality of manufacturing harmonium reeds. So now Oh. what we are saying is Indian reeds only. They are also Okay. good quality. So many research is also going on this on harmonium making and on reeds. Okay. Okay. This harmonium was banned Yeah. earlier in All India Radio. Uh, uh, so why it was banned? Any idea? Yeah. I will tell you my version. Okay. Yeah. When it came to India, the harmonium was mainly made for church music, for harmonics. Huh? Oh. Uh, for chord music, chord or choir music. Okay. Choir music. Choir So, music. yeah. So that the actually the tuning of that harmonium or organ when it came to India, that was very I can say besur non-tolerable for Indian music. Oh. Especially when you sing classical music on tanpura, Hmm. automatically a swer called Gandhar comes in harmonium, as well in tanpura. Nanpura. So Yes. that Gandhar is not available in normal harmonium. That Hmm. normal harmonium is a harmonium which we purchase from market. It has Yes. got temper scale or general tuning, what we call. Yes. So that temper scale was very, I can say, not suitable for Indian music. Hmm. तो जो अच्छे गाने वाले थे उनको ये आप बाजा बेसुरा है हमें नहीं चाहिए सो इसलिए वो बैन हुआ और अदर एक वर्षन जो हम लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट टाइम गांधी जी ने बोला था कि जो विदेशी ये हाँ वो हाँ. नहीं दैट आल्सो इज अच्छा वन अच्छा. ऑफ which is told. One version. One Yeah, version. yeah, Okay. yeah. So mainly, but it was a Besur because especially Gandhar and Hayward was not suitable for Indian music, especially if you sing Yaman, Bihag like that, no? Yes. That Yes. you become very discordant note. So it's just, Yes. hmm. तो And वो that जो it, गंधार ट्यूनिंग जो हारमोनियम है, did it come later or it was there in the earlier period also no, when no, the no. As per my version, uh, when it when it, harmonium became essential because that time also very few sarang players were there who used to play surel. yes, Sarangi, if you play surel, it is a surel. Otherwise, it yes, becomes just a harmonium only. So there are yes, few sarangi players they used to play good harmonium, surel harmonium. I can surel sarangi. सारंगी. हाँ, बट जो अच्छे नहीं बजाते वो उनको जरा तकलीफ होती थी गाने वाले को, जो सुरेल अच्छे सुरेल है अरे थोड़ा थोड़ा कम है थोड़ा ऐसे so and जी. it became harmonium became very popular because you can use to play all types of music on this Yes. कीर्तन तमाशा सब में आप हारमोनियम का इस्तेमाल हो सकता था और जब आप आलापी करते हैं तो सारंगी अच्छे रहते हैं जब गमक तान के लिए जी. लेकिन अब 1 घंटे के गाना में सिर्फ गमक ही नहीं गाते आप थोड़ा छूट Yes. हाँ आप Yes. मुर्की मूर्छना फास्ट आना जैसा गला जाए वैसा भी गाते हैं उसके जी. लिए वो मैं बोलता हूँ कि वो सारंगी जो फास्ट ट्यून में तान लेते थे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता जी. सो और दूसरा हारमोनियम प्लेयर वेयर इजीली अवेलेबल फॉर वेरी बिगर पेमेंट दैट Yes. टाइम हाँ Yes. नाउ ऑल्सो इट इज द सेम केस आई शुड नॉट से Yeah. इट इज बट लेकिन हाँ इसलिए हारमोनियम का इस्तेमाल हो गया और इसमें जब लोग बोल रहे यार थोड़ा बेसुरा है थोड़ा बेसुरा काम करने को थोड़ा सोचो तो जो अच्छे स्टालवर्स थे हाँ उन्होंने हाँ. सोचा कि यार हम ट्यूनिंग नहीं क्यों कर सकते एक्चुअली ट्यूनिंग क्या है इसलिए तो नॉर्मली मेरा वर्षन है वो आश्रेकर करते आश्रेकर उन्होंने 22 श्रुति का हारमोनियम बनाई जी. हाँ और उसका और गांधार ट्यूनिंग का इस्तेमाल जो आज प्रसार हम बोलते कि पंडित टी मधुकर हाँ उन्होंने हाँ. ज्यादा किया लोगों को बाद में सब जी. जो अच्छा गायक वादक थे वो जो हारमोनियम का रिपेयरी जानते थे उन्होंने भी हारमोनियम ट्यूनिंग शुरू शुरू किया और भाई अभी आपने
बेसुरापन पूछेगा। इसमें आपको डेमो देता हूँ कि गांधार ट्यूनिंग यानी क्या और जनरल ट्यूनिंग यानी क्या। ओके, जी तो जी हाँ, तो एक इक्वी टेम्पर स्केल यानी क्या, हर दो सुर में एक सेमीटोन का डिफरेंस रहता है, जिसको जी हम आप 440 स्केल बोलते हैं। तो सब 440 को आप ट्यून करते हैं तो सब जी सर्ज मध्यम सर्ज पंचम में थोड़ा थोड़ा बेसुरापन लगता है, जी आता है, नेचुरल आता है। हाँ, जी वो वेस्टर्न म्यूजिक के लिए चलता है लेकिन क्लासिकल म्यूजिक के लिए नहीं चलता। तो आजकल मैक्सिमम हारमोनियम ही इस्तेमाल हो रहा है। तो हर एक हारमोनियम वादक जो है, अच्छा हारमोनियम वादक, उसके पास चार चार पांच पांच हारमोनियम है जो अलग अलग जी ट्यूनिंग बोलते हैं। हाँ, जी और वो खुद यंग जनरेशन जो हारमोनियम प्लेयर है वो बहुत होशियार है, उनका रिसेंट जी बहुत अच्छा चलता है और वो जी खुद हारमोनियम करते हैं। इसलिए अभी जो हारमोनियम जो यंग जनरेशन में जो इस्तेमाल करते हैं वो जी नॉर्मल 99.9 सब गांधा ट्यूनिंग का ही इस्तेमाल करते हैं और खुद जानते जी हैं हारमोनियम का निगाह रखने का। तो अभी मैं जी यहाँ पे डेमो देता हूँ जनरल ट्यूनिंग का हारमोनियम और गांधा ट्यूनिंग का हारमोनियम का। तो पहला जी हम जी जनरल ट्यूनिंग का हारमोनियम सारंग बताएगा। जी जी हाँ थोड़ा राइट राइट राइट। जनरल ट्यूनिंग हाँ के दो हाँ you can listen my voice also. यस यस Now see, every surge and madhyam, surge and pancham, there is some besurapan. They are not accurate. देखो, especially I asked Mr. Sarang to play Shuddha Gandhar and Surge and Gandhar, Sagar. See, ये आपको नहीं चलता। एक मैं जी आपके साथ मैं साथी को है तो मैं हारमोनियम लाया तो आप बोलेंगे नहीं बाबा ये नहीं चलेगा, दूसरा चलो। ओके, यस हाँ, यस तो अभी मैं गांधार ट्यूनिंग का हारमोनियम कैसा है अभी देखा तो। ओके, जी अभी सारंग का सा और मेरा सा एक ही है। ओके, यस अभी डिफरेंस देखो, मैं सागा बजाता हूँ पहला, अभी ये गांधार और सर्ज का कॉम्बिनेशन देखिए और सुरेलपन देखिए, आप समझ में आ गया। यस अभी नाउ सारंग वाह विल प्ले दिस सागा, देखो। हाँ हाँ, ये आपको नहीं चलेगा, ये आपको नहीं, ये किसको भी नहीं चलेगा, जिसको सुनने को अच्छा है, जिसको कान यस सुरीला यस है उसको नहीं चलेगा, वो बोलेगा अरे भाषा बेसुरा है। हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ हाँ, यस अभी देखो, वाह 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 अभी मैं एक साथ 3 स्वर बजा रहा हूँ, यस आपको एक ही लगेगा। यस वाह क्या बात क्या बात अभी यही स्वरावली वो बजाएगा, देखो कैसा है डिफरेंस। देखो, वाह ये गांधार वाला जो मजा है ना वो एस में मिलता यस है। ये अभी सही ये तानपुरा का गांधार और मेरा हारमोनियम का गांधार एक ही है। एक ही है करेक्ट है तो इसका इतना फर्क होता है। इसलिए फॉर्मरली हारमोनियम वॉज बैंड। ओके, ओके आफ्टर ओके जब गायक लोगों के इनसे कुछ चलता ही नहीं था, क्योंकि अच्छा बजाने वाले हारमोनियम वादक थे और हारमोनियम में इन्वेंट होके सबके पास गांधार ट्यूनिंग का हारमोनियम भी आ गया था, जी इसलिए उनको समझ में आया और बैंड वाज लिफ्टेड। ओके, ओके हाँ, तो ओके आजकल सभी सारंगी वादक के साथ ज्यादा हारमोनियम का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अभी बजाने वाले सब यंगस्टर जो है वो अच्छे या सुरीले गए और उनको ट्यूनिंग मालूम है, वो जानकारी खुद है करते हैं। हाँ हाँ, जी जानकारी है। इसी में मैं आपका और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है कि आप थोड़ा ये हारमोनियम बनाने में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी आप रुचि रखते हैं और आपने किया है इस पे काम या उसका साइज वेट या इसके सबको आप ध्यान में रख के you have done some work on this so can you please throw some light या on that तो आजकल सब बहुत यंगस्टर्स आ गए, उनके पास डिग्री भी है, वो साइंटिफिक नॉलेज भी है, वो ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। जब 30-40 साल तक मैं हारमोनियम सीख रहा था
हाँ, जब मैं ब्लाइंड स्कूल में काम करता था, उस नजदीक ही हारमोनियम रिपेयरिंग का दुकान था। तो मुझे ओ, सब जब खाने का छुट्टी मिलता था 1 घंटे का, उस टाइम में हाँ, उस दुकान पे जाके वो बैठता था, वो कारागिर जो करता है उसके पास बातें करती है, कैसा है, इसको क्या करने का, हाँ, ट्यूनिंग कैसे करने का, और साउंड बॉक्स कैसा बनाते हैं, कीबोर्ड कैसे काटते हैं, कैसा बनाते हैं। वो मुझे पैशन थी। वो ऐसा मेरे डेवलप हो गया। मेरा अभी जो मैं रिसर्च करता हूँ टोनल क्वालिटी, मेरे हिसाब से हारमोनियम का रीड जो जब सोलो बजाते हैं वो फ्लूट जैसा या सनई जैसा आना चाहिए, तो कान वाह, को वाह, नॉर्मली हाउ यू रिकॉग्नाइज, अरे कितना इसका आवाज कितना अच्छा है, बहुत जी, सुरीला है। तो पहले आम जो जनता जो गाना सुनते हैं वो बोलते हैं अरे क्या इतना गाना कितना कितना सुरीला है, उसका वाह, गला बहुत अच्छा है। तो गला जी, अच्छा है वो एक्सपेक्ट रसिक करता है सुनने वाला, तो बाजे का भी हमारे बाजे का सुर भी अच्छा होना चाहिए ना। सही है, सही है, हाँ, तो करेक्ट। इसलिए वो हारमोनियम का रीड्स जो जो जर्मन और पेरिस में आता था, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, उनका अलग क्या है, ये भी मैं करके रखता। मैंने भी 1 2 3 रीड बनाए हैं। और उस टाइम बेलगाम में कई हारमोनियम वादक ऐसे थे और हारमोनियम के रीड्स बनाने वाले भी लोग थे। उस टाइम ओहो, बेलगाम में एक माहौल अच्छा था, तो वो सब इंस्पिरेशन बोलो कि एक एटमॉस्फेयर लोकल, इससे मुझे हम्म, ज्यादा चालना मिली कि अरे हम भी कुछ करेंगे। वाह, हाँ, तो मेरा ये जो बाजा मैं बजा रहा हूँ ये सब मैंने बजा है, डिजाइन वगैरह सब मेरा ही है। क्या नॉर्मल बात है, की साइज और मेरा ये अलग ही है। मैं अलग वाह, अलग कॉम्बिनेशन करता हूँ। अब ये इसकी एक लाइन इंडियन है और दूसरी जर्मन पेरिस की है, ओ, पेरिस की अच्छा, है। अलग अलग कॉम्बिनेशन का मैं कर सकता हूँ कि मेरे को मैं वो पैशन है मेरा। या अच्छा, वेरी गुड, मेरे को 100 रुपए हारमोनियम अकम्पनीमेंट से मिले तो मैं 200 रुपए हारमोनियम रिपेयर में खर्च करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, वो एक एक अलग आपने सोचा है, क्योंकि बहुत हाँ, कम हारमोनियम प्लेयर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग, आपने जैसे बताया कि आजकल के जो यंगस्टर्स है सब लोग गंधार ट्यूनिंग का ही यूज करते हैं और बहुत अच्छा बजाते, तो सवाल ही या नहीं, अच्छा ही बजाते हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत या कम लोग इसके बारे में सोचा है और आपने इसके ऊपर काम किया। क्योंकि या मैंने भी एक बार बीच में, मुझे याद है सारंग से बातचीत के टाइम पे उसने बताया था कि फ्लाइट के लिए इजी हो इसके लिए 7 किलो के या अंदर का भी या हारमोनियम। या या उसने किया है। अभी अभी तो पुनः मुंबई में सब बनाते हैं, लेकिन उसने जी, किया है। उसने पहला प्रयत्न किया, अभी चल रहा है। और उसके अल्टरनेटिव हारमोनियम को जो लेदर बोलता है नाम लेदर, इसको कोई अल्टरनेटिव मिलता है क्या, वो हम सोच रहे हैं। और रीड जी, रीड का क्वालिटी और ऐसा अच्छा कोई कैसा बना सकते हैं, वो कोशिश चल रही है। वो निरंतर कोशिश चलने वाला है। किसको सुरेल नहीं, आदमी को और कोई अच्छा गवाही को समाधान नहीं मिलता एक प्रोग्राम मिलने से भी। तो बोलते हैं जी, अरे और थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये जगह इधर गई वो उधर गई तो अच्छे होती थी। तो जी, जी, इसी से वैसे ही, इम्प्रोव, हाँ, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस। तो कोई यस, यस, इसको समाधान नहीं मिलता किसको भी, कोई कलाकार हो गवाही हो, और थोड़ा अरे ये और थोड़ा आना चाहिए, और इस दिशा से और तो बोलता है। हाँ, नेवर एंडिंग स्टोरी। यस, 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 ट्रू, ट्रू, वो तो सही है आपने। आई मीन इट्स ऑलवेज एन इवॉल्विंग जर्नी, कि इसमें अलग अलग, इट्स एन इवॉल्विंग जर्नी, ये कभी भी हाँ ये हो गया फाइनल ऐसा नहीं है इसमें, तो इट इज फाइनल है। ऑलवेज एन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नाउ विल कम टू दी फ्रॉम द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ हारमोनियम टू प्लेइंग पार्ट, हारमोनियम या जो बजाना है उसके बारे में ओके हम लोग थोड़ा बात करेंगे। या आप थोड़ा एकम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट तो है ही, लेकिन मैंने जो देखा है कि योर एफर्ट्स, स्पेशली या रामबाव बिजापुरे, हाँ आप एंड रामबाव बिजापुरे अदर स्टूडेंट्स लाइक डॉक्टर रविंद्र काटोटी, या आप लोगों ने सोलो के ऊपर बहुत काम किया है, यू हैव बहुत वर्कड अ लॉट अबाउट या फॉर सोलो। या सो या कैन यू प्लीज टॉक लिटिल बिट अबाउट सोलो कैसे होना चाहिए और अकम्पनीमेंट, आप जब या भी किसी के साथ बजाते हैं तो, क्योंकि अकम्पनीमेंट में क्या होता है, हर एक कलाकार का रिक्वायरमेंट अलग होती है, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा बजाओ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कम बजाओ, कुछ लोग बोलते हैं जोर से बेलो जो है वो जोर से लगाइए, क्योंकि उनका आवाज दम अच्छा रहता है तो उनके साथ। तो आप उसको सब कैसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम लोगों को। मैं पहला अकम्पनीमेंट के बारे में बोलता हूँ, बाद में सोलो के जी, बारे में। ओके। जी, जी, सो हम, मेरे गुरु भाई और हम खासियत बोलते कि हम जो हारमोनियम सीखे और जो हमारे गुरु ने हमको शिक्षा दी, हम्म, वो अकम्पनीमेंट बनाने के लिए नहीं सिखाया हमको। जी, उनका एक सपना रहा कि आप जैसे सतार संतूर मिडिल में, जब गवई जैसा मिडिल में बैठता है, मध्य बैठता जी, है,
वैसा जी हारमोनियम में बैठनी चाहिए, उसकी उनकी सोच थी और उनका एक थॉट था। तो जी उस ढंग से उन्होंने हमें सिखाया। तो आप जैसा गुरु जी के पास एक राग 6-6 महीने 7-7 महीने सीखा, वैसा जी हारमोनियम मैंने और मेरे गुरु भाई काटोटिया और हमने एक ही राग 6-6 महीने हमने सिखाया। वाह लोगों को लगता है अरे क्या हारमोनियम में सीखने की क्या बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, जी लेकिन जी कौन से भी आर्ट के लिए गुरु चाहिए। और हम या इतने हमारे गुरु जी से डरते थे कि आप 6 महीने 2 महीने होने से हम ये राग का अंतरा बताइए, ऐसा बोलने की हमको गुरु जी की धमक नहीं थी। तो जी ही वॉज वेरी काइंड टू मी बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। यस हाँ तो वैसा। और जब और एक अकम्पनीमेंट के बारे में मैं बोलता हूँ कि आप अच्छा अकम्पनीमेंट वाला होना चाहिए, तो आपको गाना के संस्कार होने चाहिए। वाह आपका अभी सबको विशारद अलंकार इस परीक्षा मालूम है, इससे मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम द पर्सन हु वांट्स टू प्ले अकम्पनीमेंट और सोलो, ही शुड हैव एटलीस्ट लर्न म्यूजिक, गाना सीखना चाहिए आपको विशारद लेवल तक। उसको यस गाना आए ना आए, उसका अच्छा आवाज है वो बात अलग है, लेकिन उसको राग क्या है। अभी हारमोनियम हमारे हिंदुस्तान राग की खासियत है कि हम राग से सिर्फ राग आरोह से हमारा राग नहीं बनता। वो यस राग उच्चारण जो है उसका वादी समाधि ठहराव जो बोलते हैं, उसको लगाव बोलते हैं, स्वर के दर्जे ये शब्द बोलते हैं, यस इसके ऊपर से ही राग का इस्तेमाल होता है। नहीं तो मारवा करेक्ट सोनी पुरी तीनों एक ही राग है आरोह वैसे। सेम है इसके आप सब मैंने आपने मुझे एक अकम्पनीमेंट के लिए बुलाया और हम्म आप पुरिया गा रहे हैं, मुझे हम्म पुरिया मालूम नहीं। तो मेरे साथ वो अकम आप जब मुझे कोई 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए कोई आपको रेस्ट चाहिए बोले तो मैं मारवा भी बजा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पुरिया राग चला नहीं मालूम नहीं, इसमें जी जी मुझे तो आया और नहीं मालूम है। हाँ, इसलिए कोई भी अच्छा सक्सेसफुल अकम्पनीमेंट होना चाहिए तो उसको गाने का असर होना चाहिए, गाने के संस्कार होने चाहिए। वाह हाँ, और आप जैसा गाना आपकी किराना स्टाइल है, आपको स्टाइल जैसे है उसी तरह से मेरा बर्ताव होना चाहिए। आई जी एम हियर टू सपोर्ट यू, मेरा रोल है आपको सपोर्ट करना है और आपको गाने का थोड़ा रंगदार बढ़त में मजा लाने का है। जस्ट लाइक वी कैन से हम तीखा बोलते हैं ना, थोड़ा तड़का मारो हाँ हाँ खाने में, दाल हाँ हाँ तड़का। हाँ, जी जी वैसा तड़के का भूमिका हमारी रहती है कि आप जब 2 मिनट में आपको रेस्ट चाहिए, आपको अलग जी आपको सोच चल रही है, उसके लिए हाँ आपको थोड़ा सी विश्रांति चाहिए, थोड़ा पहुंच यस चाहिए। उस टाइम यस हम बोलते हैं आप हमें बोलते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ही नहीं कहा, आप जैसे जा रहे हैं उसी हाँ ढंग से हमें जाना चाहिए। आपको गांधार पर आप काम कर रहे हैं, आपको और हम्म मुझे और पूरी अरे राग चलता, मैं मध्यम और धैवत तक जाने की मेरा ये नहीं है, जाना नहीं चाहिए। मैं आपके करेक्ट गांधार तक ही गए और आप जैसे जा रहे हैं उसी तरह से जाना चाहिए। आप वाह वाह कोई जयपुर घराने का गाय तो वो उनके जो डांस पैटर्न है उस तरफ से मेरे को जाना है। आप मैं जयपुर के साथ कोई अकोमोडेट करा तो मैं किराना घराना से तान बाजी बजाएगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो नहीं बोलेगा। तो हाँ, इसलिए जो घराने के स्टाइल है उस जी घराने का स्टाइल का अकोमोडेमेंट का थोड़ा रियाज और सातत्य कंटिन्यूस सानिध्य बोलते हैं ना, वो भी जी हारमोनियम आर्टिस्ट को करना चाहिए। सिर्फ आप मुझे प्रोग्राम को बुलाओ ऐसा नहीं। जी आप गाते हैं, हम बेलगाम के रहने वाले हैं और हमके किराना घराने का बहुत असर है, इसलिए हमको किराना गाने का अच्छा लगता है और हमको ज्यादा अकम्पनीमेंट करने के लिए मौका भी किराने लोगों का ही मिला। जी हाँ, तो और हमारी सोच और लाइकिंग भी उसकी तरह है। तो कोई जी ग्वालियर वाला है, जयपुर वाला है, वो हारमोनियम वाला का उस तरह से उसको थोड़ी सीख होनी चाहिए। उनके राग की जी पहचान कैसे है, उनके चांद पैटर्न कैसे है, वो कैसे डेवलप करते हैं, उसकी जी थोड़ी अभ्यास करना जरूरी है इसलिए। जी जी और गाने वाला और बजाने वाला हर दोनों की वेवलेंथ जमनी चाहिए। वाह वाह करेक्ट ये कोई एक कुश्ती नहीं है, हम ये सब टीम वर्क करते हैं, तबल जी हारमोनियम वाला ये कोई यस टीम वर्क करके जब लोग आपको ताली बजाते हैं उस ताली में वो साथीदारों की भी थोड़ी भूमिका रहती है ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हाँ, ऑब्वियसली तो एक एक होता और कई कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि अब हारमोनियम वाला का कोई एक आवर्तन छोड़ दिया बजाने के लिए, हम्म तो हारमोनियम वाला एक अच्छा हारमोनियम आपके जैसे ही दिमाग थॉट से जो आप जैसा चल रहे हैं ढंग से उसी तरह से एक बजाओ और लोगों का अच्छा लगा उसने चपाई यानी ताली ताली बजा बजाई। हाँ तो कई मेन आर्टिस्ट है उनको अच्छा लगता है वो क्या बातें बोलते हैं, कई को वो अच्छा नहीं लगता है, मैं 1 घंटा गा रहा हूँ और एक दो मिनट गाया इसको लोग आवाज तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, तो ऐसा भी भूमिका तो ऐसे इसलिए मैं बोला कि जैसी वेवलेंथ जमती है और जैसा मेन गवैये का नेचर रहता है उस तरफ हम जाना चाहिए।
जी मेरे को वो राग मालूम है, वो बंदिश मालूम है, इसलिए उसको अंतरानी ने भी गाया नहीं तो मैं अंतरा बजा के दिखाए तो क्या अच्छा नहीं लगता ना। यस मेरे मैंने आई में अकम्पनीमेंट, आई शुड नो माई लिमिटेशन। वाह मेरी मर्यादा पाल के ही मैं अकम्पनीमेंट करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है कि उसका गाना अच्छा कैसा होना चाहिए, उसके जी गाने में थोड़ी रंगतदार करते आना चाहिए, इस ये मेरी भूमिका है। इस तरह करेक्ट से वो हारमोनियम अकम्पनीमेंट, क्योंकि हमारे गुरुजी वैसे थे इसलिए हम कोशिश करते हैं। मैं नहीं जी बताता कि मैं अच्छा ही हारमोनियम बजा अकम्पनीमेंट वाला हूँ। कई लोगों का अच्छा लगता है वो हम बुलाते, हमें बुलाते। अलग हम्म अलग लोगों को अलग सोच रहती है, डिस्टेंस रहता है। जी हाँ, जी अभी मैं सोलो के बारे में आता हूँ, जो मेरा जियोलॉग कनिष्ठ आई मीन माय फर्स्ट लव फॉर हारमोनियम। लव जी हाँ, जब हमारे गुरुजी ने हमने बताया हुआ हमारा एक राग आधा पहले बोला 6-6 7-7 महीने चलता था, वो हम थोड़े गा के दिखाते थे और बोलते थे ऐसा करो, विस्तार लिख के देते थे, बंदिश लिख के देते थे, तान पैटर्न पहले जब सीखते थे बेसिक थे वो लिख के देते। तो वही आदत हमें पड़ गई। और जब डेवलपमेंट का राग जो है हम कई बार अभी हारमोनियम सोलो के लिए भी अच्छे दिन आए रहे, लोग प्रोग्राम छोटे मोटे हारमोनियम सोलो के प्रोग्राम होते हैं जो जी हम बजाते हैं, स्पेशली मैं और मेरा गोटू बंदी, तो हमारा थॉट रहता है कि हारमोनियम जो है वो गाने जैसा होना चाहिए, वाह लोगों का गाना सुना ऐसा लगे। इसमें दो भी वर्षन है, कोई लोग बोलते हैं कि हम सतार संतूर जैसे जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है इसलिए इंस्ट्रूमेंट जैसा ही लगना चाहिए। सिंस इट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव अलग अलग यस सोच रहती है। ऐसे कि जी मेरे को गाना पसंद है, गाने बजाना इसलिए कि वो तंतुवाद्य के साथ अंग से बना जाए, का अच्छा नहीं बजता ऐसा नहीं, वो भी अच्छा हम्म, बजता है, उसकी सोच अलग है, उसके संस्कार अलग है। तो जी हम जो सोच करते हैं कि जब आप जैसा एक राग बढ़त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम्म आप राग गा रहे हैं तो आप थोड़ा विस्तार करेंगे, हम्म एक बंदिश गाएंगे, उस तरह अभी थोड़ा भी सैंपल दिखाता हूँ। जी जी हाँ हाँ हाँ, क्या बात हाँ 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 इस तरह चलता है। आप जैसा एक एक स्वर के ऊपर विचार करते हैं, हम्म अलग अलग एंगल से वो तो स्वर देखते हैं। हर एक राग एक कैलिडोस्कोप जैसा है, आप जी जिस एंगल से उस स्वर को देखते हैं उस तरह से आपको दिखता है। वाह तो वैसा आपकी सोच बढ़ती है। आप 10 लोगों के साथ हारमोनियम अकम्पनीमेंट के लिए और उन्होंने बिहाग ही गाया है, तो मेरी इंफॉर्मेशन मेरा मैटर बिहाग 10 लोगों के लेके ज्यादा बढ़ता है। अरे ज्यादा हो गया उन्होंने ऐसा करेक्ट किया लेकिन वो हारमोनियम अकम्पनीमेंट की सोच चाहिए, करे उनके साथ कुछ मैं लेना चाहिए, सिर्फ मेरे को जी विदा की मैं उसके लिए बजाता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए। ये शुड बी स्टूडेंट ऑलरेडी ऑलरेडी। यस यस बहुत बहुत सही कहा आपने बहुत सही कहा कि जब भी आप किसी के साथ बजाते हैं तो मैं जैसे आपने कहा कि आई टोटली एग्री विद दैट दैट कि हमारा जो प्रोग्राम होता है अगर आप अकम्पनीमेंट कर रहे हैं कि इट इज अ टीम वर्क या और और एक का दूसरे के लिए एक जो बजाते हैं या गाते हैं वो पूरक होना चाहिए मतलब पूरा बोला इट शुड Yeah, yeah, कॉम्प्लीमेंट yeah. विथ ईच अदर It is just like a three-member family, you can say. yes true it should not be it should not be a competition but it should be a Yeah, yeah, complementing yeah. uh, Complementary. See each other. करेक्ट Yeah. ये मैं इसी में एक अकम्पनीमेंट में एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में इफ यू सी कि there are a lot of things which have different ways of showing I mean different ways of exploring Exactly, yeah. बिहाग में ही अभी बिहाग Yeah. में ही हम लोग लेते हैं तो
कुछ लोग बोलते हैं साम ग प, सही है या बोलते हैं, कुछ या लोग या सा ग म प, ये भी सही या है बोलते हैं. या तो when you accompany an artist, या it might differ from what you have learned from your guru. या एग्जैक्टली. So at that point, whether you follow that artist, whatever he has sung, even though we have not learnt in that way, whether you will follow that artist or you will play according to what your guru has taught. Which one No, no. is your thought Yeah. process? No, you have asked me very good question. Just now I told you that the role of accompaniment is to support, just like a shadow. So आप सामगप करते हैं तो मुझे सामगप ही बनना चाहिए. मुझे सागमप जो आता है सिखाया है तो मेरा हाँ, जो इन्फॉर्मेशन होना चलेगा. हाँ, आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाना चाहिए. correct, हाँ, क्योंकि आपको डिस्टर्ब होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी सोच आपके संस्कार सामगप का है, सागमप जी, के नहीं है. correct, हाँ, तो ये सामगप गलत है और सागम करेक्ट है ऐसा बोलने का मेरे को अधिकार नहीं है. वो होना ही नहीं चाहिए. correct, 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 आप सामगप करते तो मैं जब आपने मुझे बजाने को छोड़ा तो मैं सामगप करके ही डेवलपमेंट करना चाहिए. correct, correct, correct. Just like I am a Xerox copy of what you are singing. वाह, That I वाह, could tell. Yeah. करेक्ट, करेक्ट. सुधांशु जी, आप इतने कलाकारों के साथ बजाए हैं, फ्रॉम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी टू यंग आर्टिस्ट तक, यू हैव प्लेड विथ ऑलमोस्ट ऑल पीपल. हर एक अलग अलग लोगों का साथ आपने बजाया. तो यंगस्टर्स के साथ भी बजाए हैं, और people who are legends and who have done who have made our musical so rich, music so rich, with them also you have played. What difference do you see in the older generation musicians and younger generation musicians? In styles of singing or in behavior? What is expected? No, in style of singing, or suppose you are accompanying a person, a younger generation, do you find something which is very very extraordinary जो पहले वाले में आपने नहीं देखा, या पहले वाले में कुछ ऐसे अलग एक अलग था which you have not seen in nowadays? अभी देखो, जो माहौल और हम जिस युग में चल रहे, जनरेशन बोलते हैं ना जी, वो अलग अलग जनरेशन के सोच थी, अलग अलग जनरेशन के विचार था, रहने का लाइफ स्टाइल थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था. स्पेशली जो पहले लोग थे उनके पास बहुत टाइम था रियाज करने के लिए, उनके डिमांड्स बहुत कम थे जी, हाँ. तो उसका असर बहुत उनके गाने पर और उनके ग्रूमिंग में हुआ. हाँ, अभी देखो फॉर एग्जांपल आमिर खान जी का जो गाना जो इतना लंबा चलता है, धीमे चलता है, वो हम लोग तक सुन सकते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. वो यंग जनरेशन को उतना टाइम सुनने को लिए चाहिए और रियाज करने के लिए भी नहीं है. जी, हाँ, क्योंकि आज सब झटपट बोलते हैं ना, इसी 6 महीने का yes, बिजनेस हो गया, 6 महीने का में ट्रेनिंग हो गया, कोर्स हो गया. कोई भी कला संगीत कला कोर्स हो गई है, जो क्लास में सिखाते हैं वही क्लासिकल हो गया है. जी, जी, हाँ, तो वो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. पहले लोग जो 6 महीने 2 साल हम सुनते हैं कि केसर भाई ने 1 साल उनको गुरुजी ने 5-6 साल एक ही राग सिखाया वगैरह. भीमसेन जी से बोलते हैं कि गुरुजी ने हमको यमन ही सिखाए 2 साल. हमको अरे 2 साल में इतने कैसे है. हमारे जी, साथ जी. बच्चे आते हैं, आज तुमने एक तान नहीं दिए तो वो गुरुजी को पेरेंट्स आते, अरे गुरुजी आपने आज कुछ सिखाया नहीं, आज तो फी कट. इतना यहाँ तक माहौल आया है रियाज. और जी, उस टाइम आप जैसी डेवलपमेंट हो गई है, माइक थी, ऑडियो सिस्टम थी, उतनी नहीं थी. जी, वो खर्च भरना, ये भरना, 6 बजे 4 बजे उठ के. आज को कोई यंग जनरेशन के पास टाइम है सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के 2-2 घंटा खर्च भरने के लिए? उसके पास नहीं, और जरूरत भी नहीं है. क्यों आप माइक का और इतने डेवलपमेंट हो गए, आप रिकॉर्डिंग में सुरीला स्वर भी बेसुर का और सुरीला कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करके. इतनी डेवलपमेंट हो गई है, और इतना पेशेंस सुनने वालों भी नहीं है. जब अच्छा गाने वाले है उसको अच्छा रसिक भी चाहिए. हमारे गुरुजी के पास हम सुनते थे कि एक बार विलायत खान का बिहाग हो तो 2 घंटा बिहाग उन्होंने बजाया बेलगाम के वामई चलते हम करके एक संस्था ऑडिटोरियम में.
तो जी 2 घंटा भी है, हम सोचे आधा घंटा हो गया तो लोग पब्लिक को भी ये कह रहे क्या हाँ दूसरा भजन गाओ, जो दूसरा कुछ बजाओ करके। उस टाइम उनका टेम्पर इतना था, लोगों के पास टाइम बहुत था, स्पेशल टाइम जी बहुत था, उनके वरीज कम थे, करेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ कम थे, इसलिए दे कुड एंजॉय इट। यस आज आमिर खान स्टाइल का गाना कोई 2 घंटा कोई आप मारवा गाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, जी उसके पास कितना मैटर हो। तो ये जी जनरेशन गैप बहुत है, और आजकल जी के बच्चे को इतनी, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं बच्चे नहीं बोलूंगा, स्टूडेंट्स बहुत हाँ, होशियार है, जी वर्साटाइल है, और यूट्यूब के माध्यम से इनको एक ही राग 10 लोगों के हाथ से सीखने को मिलता है। यस यस हाँ सही है हाँ सही है हाँ। हम हम जब हम गुरुजी से बात करते थे, वो बोलते कि इनके पास वो इतने अस्थाई थे, इतने अंतरे थे। हाँ, जब जी म्यूजिकल लोगों की शादी होती थी, उस टाइम दहेज के लिए वो बंदिश देते थे, 100 बंदिश उसने दिया है। जी आज आज के स्टूडेंट में हर कोई बंदिश बना रहा है। करेक्ट है हाँ, उस करेक्ट है टाइम उस टाइम उसका डिमांड इतना था, उसको वैल्यू इतनी थी। आज को जी ऐसा नहीं है ना। तो आज जी के जमाने में क्लासिकल म्यूजिक को आप जिंदा रखना चाहिए, तो आज लोगों की जैसी डिमांड चाहिए वैसे आप बजाना चाहिए, गाना चाहिए। आधा घंटे के आगे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, यस यस कि यस क्या नहीं लगते कि भजन गाओ, गजल गाओ करके। एंड इफ यू वांट टू सर्वाइव इन म्यूजिक फील्ड, आपको करना ही पड़ता है। आपके पास चेंज ऊपर संस्कृत कितने क्लासिकल तो एडजस्टमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको सर्वाइवल है। आपको यस प्रोग्राम यस चला तो आपका पेट चलता है। यस यस उस टाइम राजे लोग थे, उनको दरबार गवायक थे, उनको कोई सपोर्ट करता था, तनख्वाह मिलती थी। जी आज वैसा नहीं है। अब आज जी देखो ना, आज कोरोना से हिट से हाँ कलाकार जो हमारी कम्युनिटी कितना मैक्सिमम लॉस हुआ है हमारे आर्टिस्ट लोगों का, जो यस हमारे सिर्फ क्लास करके और प्रोग्राम बजा के जो जिनकी जिंदगी चलती है, उनको प्रोग्राम नहीं, क्लास के लिए फी लेके वो, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो भी मिडिल क्लास के है, उसके जी बाप की भी फी कम रहे, तनख्वाह कम हुआ है 30%, पर जी तो संगीत सीखने के लिए और संगीत मास्टर को कितना देगा। करेक्ट सही है तो आज का जमाना इतना बदल गया है, और स्पेशली जी दिस कोरोना हैज गिव ए लेसन टू आवर आर्टिस्ट। सिर्फ मैं गाना बजाता हूँ, करता हूँ, और इसके पेट नहीं। नाउ नाउ एवरी स्टूडेंट, यंग जनरेशन, दे आर वेरी आई मीन वेरी, आई मीन बहुत अच्छे है, और बहुत होशियार है। So जी everybody just think he is a doctor, engineer, so he should maintain music as a passion. If time यस comes, he can do his job and do it. पर दोनों को पैर रखते ही मुझे लगता है कि अभी मुझे करना चाहिए, क्योंकि जी जी हमारी कम्युनिटी इतनी परसेंटेज कम है, गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं कि हम संगीत लोगों के लिए कुछ करने के लिए। जी शादी के लग रहे 10 किलो तांदूल दे, 3 महीना का रेशन दे, फिर हम कलाकार लगे के कोई पूछ रहा है अभी। यस और हमारी कोई नहीं इज्जत भी, हमारे एक स्टेटस रहता है कि आए अच्छा बजाने वाला है, गाने वाला है, हम नहीं करते, किस कह सकते कि हमारे पेट के लिए कुछ नहीं है। करेक्ट जेब में 10 पैसा नहीं तो भी अच्छा है, स्त्री का शर्ट मुझे डालना ही चाहिए। जी 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 ये सही है परिस्थिति है, मेरी गंभीर, मेरी डेडिकेट सिचुएशन है हमारे कलाकार लोगों की। हमारे कौन जी सोचता है, सुनता है, क्योंकि सही है हमारी इसके लिए हमारी यूनिटी नहीं है, और हम कलाकार लोगों की न्यूसेंस वैल्यू नहीं है। यस यस सही है सही है बहुत बहुत सही कहा बहुत सही कहा जी पंडित जी एक सवाल एक व्यूअर है उन्होंने पूछा है ज्योति बेलूर जी करके ये बैंगलोर से एक बहुत अच्छी सुनकार है संगीत की उन्होंने लिखा है कि जुगलबंदी ऑफ हारमोनियम विथ अदर इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट इन प्रैक्टिस इज इट पॉसिबल और एनी अदर रीजन इट इज प्रैक्टिस, स्पेशली हारमोनियम को रीड इंस्ट्रूमेंट है। हम्म हाँ, हम सुशीर वाद्य में इसमें इसमें आता है। तो जी हारमोनियम के साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आप जुगलबंदी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मिलने वाला जो हम बोलते हैं टूगेदर, तो हारमोनियम और फ्लूट, हारमोनियम और सनई, हाँ हाँ इसके अच्छा होता है। वायलिन और हारमोनियम भी होता है। मेरा गुरुबंधु रविंद्र राठौर ने, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने भी किया है, हारमोनियम और जी फ्लूट, हारमोनियम और सनई, हारमोनियम और सारंगी। अच्छा, ये कौन सा भी वो अच्छा हारमोनियम होता है, उनको दोनों का वेवलेंथ एक होनी चाहिए पहले। जी जी और एक में क्या जुगलबंदी को के लिए पैर पैर बोलते हैं ना, मैत्री बोलते हैं। यस हाँ, तो हारमोनियम वाला मेरे मेरे उंगली तेज चलते हैं, इसलिए मैं ज्यादा फास्ट बजाऊंगा, वो सारंगी वाले का बोलेगा कि तुम स्लो तुमको तान नहीं आती है, आती नहीं, जाती नहीं, फास्ट तानता नहीं, इसलिए मैं अच्छे वाला बजाता। ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों का मिलके एक, जैसा आप टीम वर्क बोला ना, वो जुगलबंदी यस में भी कोई इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का टीम वर्क है।
जी आपके मेंटल फ्रेंडशिप उसके साथ कैसी है, जी इसके ऊपर रहते हैं। आप संतूर और हारमोनियम का भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी हारमोनियम और उसको जो कंड्यूसिव जो अच्छा बजाता है, वो मैच करता है, वो पैटर्न आपको आपको बजाना चाहिए। आप वाह संतूर का मैं बड़ा बड़ा ख्याल बजाता हूँ, इसलिए आप संतूर के साथ बड़ा ख्याल बजाएंगे तो नहीं होगा। आपको मध्य ही कोई बंदिश लेना चाहिए जो उसको भी जी सूटेबल हो और मेरे को सूटेबल हो। हम दोनों का काम क्या है कि जो रसिक लोग है उनको आनंद देना चाहिए। तो करेक्ट करेक्ट सही जब हम आनंद लेंगे तो हम लोगों को आनंद देंगे ना। सही है सही है जब हम कंपटीशन करने के लिए बैठे तो ना मजा नहीं आएगा, वो जी कुश्ती सही हो है जाएगी क्या। जी 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 एक मैं लास्ट प्रश्न एक और प्रश्न आया है इधर हमारे एक व्यूअर से कि गुरुजी व्हाट आर योर व्यूज ऑन ट्यूनिंग ऑफ हारमोनियम टू हिंदुस्तानी श्रुतिस। अभी इसी के ऊपर मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ इसी को रिलेटेड कि कुछ लोग ये 22 श्रुति के हारमोनियम यूज करते हैं लेकिन उसका यूसेज बहुत कम है बहुत मतलब बहुत ही आई मीन वी कैन से इट इज ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल जो 22 श्रुति का हारमोनियम यूज करते हैं। इसके बारे में आपका राय क्या है। मैं मेरा जो विचार है मैं आप बताता हूँ। जी हारमोनियम में श्रुति निकलती नहीं, ये सही बात है क्योंकि ये टेम्पर्ड स्केल है। हाँ, हम्म हम्म इसका जो बेसिक है 7 और 5 12 स्वर। हाँ, हम्म इसमें सा पंचम स्वर के रे की 2 श्रुतियां ग के ऐसे जो बोलते हैं ना, वो हम्म हारमोनियम में नहीं आती, इसलिए हारमोनियम को अलग बनना पड़ता है। तो इसका हम्म सोच पहला आश्चर्यकर करके थे, उन्होंने हारमोनियम बनाई। हम्म बाद में उसका सांगली में एक मोहिते करके थे, बालकृष्ण मोहिते, उन्होंने हम्म 4 लिंग 28 श्रुति का हारमोनियम बनाई। और हम्म अभी लेटेस्ट पंडित विद्याधर ओक, डॉक्टर वो विद्याधर ओक, जी हाँ उन्होंने एक हारमोनियम अच्छी बनाई है और उसका हम्म, पेटेंट भी लिया है। जी वो जो हारमोनियम को जो बोलते थे ये तुम्हारे पास श्रुति नहीं आती, ये नहीं आता, बेसुरा है, उनको जी उन्होंने एक बराबर उत्तर दिया है कि देखो जी आप बोलते हैं ना श्रुति नहीं बोलते, देखो ये श्रुति है। अभी हम्म और उन्होंने जो ट्यूनिंग हारमोनियम जो श्रुति का हारमोनियम विद्याधर ओक ने बनाया है, वो हम्म परफेक्ट साइंटिफिक आधार से बना है। तो आप बोलते कि मारवा का रे देखो और श्री का रे देखो, ये दोनों हम्म अलग अलग वो दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल में कितना है मेरे को जरा साशंक है, क्योंकि ये स्वर जो लगा हुआ है, आप हम्म तान में आप मारवा गा रहे, आप तान में जो आप मारवा का ऋषभ लगा हुआ वो विलंबित में नहीं रहेगा। जी तो ये दिस इज ओनली पॉसिबल इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारंगी वो वायलिन भी करेक्ट तंतु आप कह सकते हैं। लेकिन करेक्ट हर बार आप रे का जो फ्रीक्वेंसी है, जो वॉल्यूम रहता है वो लगा है, वो सेम नहीं रहेगा। वो अलग अलग यस आपका जैसा रेफरेंस पॉइंट जैसा रहेगा वैसा रहेगा। आप करेक्ट सांप को आप इम्प्रोवाइज कर सांप को प्रोजेक्ट करेंगे, उस सा जी के तरफ आपको जो रे का टच लेंगे, वो जब जी अब रे प्रोजेक्ट करेंगे उस टाइम वो रे फ्रीक्वेंसी वो सेम लगाव नहीं रहेगा। और जी दर्जा, आई विल यूज वर्ड दर्जा, दर्जा जी दर्जा ऑफ दैट वो नहीं रहेगा। तो ये सही नॉर्मल हारमोनियम जो हारमोनियम वाला जो है ना, अच्छा हारमोनियम, हम्म, वो भाता जो प्रेशर करके उसको हाँ नजदीक नजदीक जाने का प्रयत्न करते हैं, एग्जैक्ट नहीं। आपको डिफिकल्ट मत हो। जी आप जब हम बोलते हैं मराठी में आभास निर्माण करना, जस्ट लाइक यस इल्यूजन, आई कैन इल्यूजन। यस इसलिए वो 22 श्रुति का हारमोनियम अच्छा है और उसका कॉस्ट भी अच्छा है, तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। हम्म वो मुझे महीने में 10-15 प्रोग्राम मिल रहे हैं, गारंटी है, तो मैं श्रुति हारमोनियम भी लूंगा। जी जी हाँ, जी और उसका जी वेट भी अच्छा है। देखिए उन्होंने जो किया बहुत काम किया हारमोनियम को ऊपर, जो एक हम बोलते हैं धब्बा था कि श्रुति हम्म हारमोनियम नहीं था, उसको हम्म उन्होंने बराबर नाम दिया, डेवलपमेंट करके उसको उनका वो बंद किया। अरे श्रुति हारमोनियम में देखो, ये मेरी श्रुति परफेक्ट है। जी आप मारवा सिखा रहे हैं, आपको श्रुति का मारवा का रे श्रुति चाहिए रे, तो ये देखा हुआ ये बजाओ। करेक्ट तो करेक्ट ऐसे दोनों है, वो बहुत जी अच्छी जी बात है। और हम्म, अकम्पनीमेंट आप करें, कई लोग कर रहे हैं उसको, जी दोस्त होते जी हैं ना अफोर्ड दे कैन बाय हारमोनियम। और उसको यस ट्यूनिंग भी आना चाहिए ना, यस ट्रू या ट्रू ट्यूनिंग आना चाहिए, उसके लिए मशीन कान होना चाहिए। और दैट जी पर्सन हु प्लेज हारमोनियम, ही शुड नो हाउ टू मेक दैट ट्यूनिंग, देन इट विल बी यूजफुल एंड या फिजिबल। यस 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 पंडित जी ऑलमोस्ट 1 घंटा के ऊपर हम लोगों ने आज बातचीत हुआ एंड इट वाज रियली अ वेरी वेरी एजुकेटिव सेशन कि हारमोनियम के बारे में प्रैक्टिकलिटी के बारे में और थियोरेटिकली हारमोनियम कैसे होती है किस टाइप्स ऑफ हारमोनियम रीड्स
के बारे में आपने बहुत ही, और अकम्पनीमेंट कैसा होना चाहिए, सोलो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में, सब चीजों के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरह से हम लोगों को समझाया. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर sparing your time and coming to my show and explaining so beautifully about a great instrument like harmonium. So thank you so much once again to you and to Sarang also for demonstrating the things. So thank you so much, and I would like to thank all my viewers on behalf of myself and Dr. Sudhanshu ji. Yeah, please, you want to say something? I am also thankful for you for giving me an opportunity. देखिए अरे no. नहीं, क्योंकि साज वालों के लिए जो अकम्पनी वाले उनको कोई नहीं पूछता. आप जैसे हमारे साथ हमने दोनों बहुत सारे प्रोग्राम किए, हमारा नेचर एक साथ है, इसलिए हम आपको बुलाए. तो इसलिए मैं आपको बहुत ग्रेटफुल हूँ, और आपके पिताजी को भी. और आपको सब तक ये आपने जो कार्य पिछले 4-5 साल जो चला है, अभी कोरोना के वजह से थोड़ा बहुत है, लेकिन आपने जो, और आपने स्पेशली आपके पिताजी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही अच्छा है. और संगीत के लिए, और स्पेशली कर्नाटक लोगों के लिए प्रोग्राम देने का, और बाहर के लोगों को बुलाने का, उनको बाहर जाके प्रोग्राम, यू आर डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब, नोबल जॉब. ऐसा ही रहे, भगवान आपको सही सलामत दे. और ये सब कोरोना का जल्दी खत्म होके हम फिर मिलेंगे स्टेज पे. Yes, yes. जरूर. I know people might know that, not know this. Sudhanshu ji has been blessing me with his accompaniment with me for a long time. मैं बहुत छोटा सा तब से उन्होंने मेरे साथ, मैं उनके साथ एक गाने का मुझे काफी बार मौका मिला है. इवन हम लोगों ने साथ में बांग्लादेश भी गए थे हमारे गुरुजी के साथ टूर के लिए. So thank you so much, Sudhanshu ji, and thank you all my viewers for joining me. Please join me next week also for a new session with a new guest. Thank you so much, and Shubhratri. Shubhratri. I am also grateful to all the listeners, viewers, who are attending my this demo, something lecture like that. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. गलती हुई बताने तो मेरे को माफ करना. Okay. Thank you. नहीं. Thank you so much, and good night. Please stay safe and take care. Thank you. Yeah. Good night.